गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक कैन बी स्टेटेड एज ए अंडर, मतलब उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट पॉइंट है स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट और कन्फर्म अ प्रिंसिपल, मतलब philosophy of economy observe human behavior and scientific tool in a economy establish principle and theory to test the validity of such theory in real life at different time and place. Information for real life activities such a different time and place is necessary. Such information can be collected and presented in quantitative term with the help of statistical tool. For example, statistical data on a rainfall and agriculture production in a region at one time or different time help to understand cause effect relationship between rainfall and agriculture production, which economic theory has already established. Likewise, data on price of commodity and its demand can help to confirm theoretical relationship established by economy between the स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सपोर्ट और कन्फर्म एज अ प्रिंसिपल, मतलब स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन से ही आप सपोर्ट कर सकते हो, कन्फर्म कर सकते हो कोई भी प्रिंसिपल, मतलब कोई भी रूल्स हो। जैसे इसके पहले हमने समझा था कि प्राइस और डिमांड के बारे में कि एक रूल है, कौन सा रूल है, वो रूल को सेंटेंस में लिखने से कन्फर्मेशन नहीं मिलती, मतलब उसे इजीली नहीं समझ सकते। ये है रूल स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का कि नंबर में समझाओ तो उसे एक सपोर्ट मिलेगा, कन्फर्मिटी मिलेगी। जैसे हम एग्जांपल से जल्दी समझ आता है, राइट स्टूडेंट। मतलब कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल्स हो तो उसे एग्जांपल के साथ समझाया जाए तो इजी रहता है। Next point will be give an idea about the changing trend of economic parameter. With the help of economic data, we can obtain an idea of direction and magnitude of change in economic parameter. For example, we can know how sale revenue of a particular firm is changing, or we can know the trend of employment in a nation, or we can know the trend of production in different sector of a economy. For instance, we can say that share of agriculture is falling in national income or supply of money is rising in the economy. Such data help individual unit to make appropriate decision to increase their benefit and help the government in making appropriate economic policy. इकोनॉमिक पैरामीटर मतलब जो इकोनॉमिक के अलग अलग जो भी टॉपिक का हो उसे पैरामीटर कहते हैं। कि जैसे कि हमारे इंडिया में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ, ये सब इकोनॉमी के पैरामीटर की तरह है। तो इसे ट्रेंडिंग चेंज हो तो मतलब जो जो चेंजेस आते हैं ना उसको ईजिली आइडिया देने के लिए हम स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेक कंपेरेटिव स्टडी इजी. If appropriate statistical data are obtained, the comparison of parameter over different time periods across region and across national can be made. For example, we can compare growth rate of India national income between 1951 and 2015. We can also compare India macroeconomic parameter like per capita income, inflation, etc. with those of other country like USA, UK, China and etc. मतलब कोई भी दो चीज़ों को कंपेयर करना हो, एग्जाम्पल लाइक हमें जब भी आज़ादी मिली थी 1947 टू 1915, तब से लेकर अभी तक इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए उसका कंपैरिजन करना हो तो पहले पॉवर्टी कितनी थी और अभी कितनी है, इसे कंपेयर करने के लिए हम सेंटेंस में नहीं बता सकते, उसे नंबर लिखे स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन बता पाएंगे। या कोई दो कंट्री में कंपेयर करना हो लाइक USA, UK, लाइक मतलब 1951 से लेकर 2051 से कंपैरिजन करना हो UK, USA का कि कौन सी कितनी कैपिटल इनकम थी इंडिया में और USA में, तो वो हम नंबर थ्रू कंपेयर कर सकते हैं तो हम इजीली समझ आएगा। पर हम सेंटेंस के थ्रू कंपेयर नहीं कर सकते, उसे नंबर थ्रू कंपेयर करेंगे तो इजीली समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट टू बी to make precise presentation of fact. Sometimes fact about economic parameter can be represented more clearly with the help of statistical data and graph. Graph showing inflation, agriculture production, religion, disparity in income, etc. can give clear picture of the trend as compared to what description in one can do. Thus it can easily understood by lay person. इकोनॉमी के कोई फैक्ट होना, कोई सच्चाई होना, उसका एकदम प्रिसाइज में एकदम परफेक्ट प्रेजेंट करना होना चाहिए, तो उसे नंबर थ्रू ही प्रेजेंट कर सकते। कोई भी लाइक आप लोग कितनी बार न्यूज़ देखते हो, राइट, उसमें गवर्नमेंट कुछ भी दिखाती है ना, कोई भी जरा भी इंफॉर्मेशन जो भी देती है
वो परफेक्ट नंबर के साथ देती है, क्योंकि नंबर है ना उससे इन्फॉर्मेशन को ईजी बना देता है, क्योंकि नंबर में बताएंगे तो हम इजीली समझ जाएंगे, इजी बनाते हैं। आप कोई भी चीज़ नंबर के थ्रू देखो ना तो वो इजीली परफेक्ट मतलब सच्चाई दिमाग में बैठ जाती है। इसीलिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में भी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अभी कोई भी न्यूज़ देख रहे हैं हम लोग किसी के बारे में, अभी देखो जो एग्जांपल दूँ तो अभी की सिचुएशन का देती हूँ मैं, कि अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के केसेस हमें वो सेंटेंस में बताएंगे तो हमें समझ आएगा कि इतने केसेस हैं, नहीं, उसी नंबर्स में बता रहे कि आज टोटल इतने केसेस आए, इतने केसेस कम हुए, सब बता दे तो हम इजीली समझ जाता है। मतलब कॉमन पर्सन को जब नॉलेज नहीं होता है इकोनॉमिक का तो वो कैसे समझेंगे सेंटेंस में, इसके लिए नंबर थ्रू समझाएंगे तो कॉमन मतलब ले पर्सन भी इजीली समझ जाएगा। Next topic will be some requested except in collecting statistical data information and presenting diagram, graph and chart. Statistical information can be represented in the form of diagram, chart, graph. They are useful and helpful, explaining some economic principle, trend and relationship in a simple and suggestive manner. Such a representation also become attention catching. While constructing such diagram, the following particular must be careful considered. इकोनॉमिक कोई भी इंफॉर्मेशन जनरली डायग्राम के थ्रू या तो टेबल के थ्रू इजी रहता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डायग्राम के थ्रू टेबल के थ्रू समझा है तो इजीली समझ आता है। जैसे कि ये पॉइंट है, सम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट इन कलेक्टिंग स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंटिंग डायग्राम एंड ग्राफ। तो इसका मतलब है जब आप कोई भी स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नंबर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, जब डायग्राम में लिखते हो ना, उसके लिए कौन कौन से एक्सेप्ट से बातें ध्यान रखनी चाहिए। मतलब आप कोई भी ग्राफ बना रहे हो, डायग्राम बना रहे हो तो उसके लिए कौन सी चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, इन तीन चीज़ों में बताया गया है कि इन तीन चीज़ों में जो बताया गया है उससे ध्यान रख के हम डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा। द सोर्स ऑफ डेटा मस्ट बी रिलायबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टू इंश्योर देयर एक्यूरेसी। For instance, to obtain information regarding growth and development parameter in India, Economy Survey for India and data provided by Central Statistic Organization is reliable sources. To obtain comparative data for such a parameter for different country of the world, World Development Report is reliable and universally accepted sources. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा मतलब आप जो भी इंफॉर्मेशन अगर ले रहे हो वो कहाँ से मिल रही है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं है ना। इसलिए जब भी ग्राफ बनाओ ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, उसे समझने के लिए ईजी रहेगा। क्योंकि प्राइमरी डेटा रहेगी तो आपकी इंफॉर्मेशन राइट भी हो सकती है, रिलायबल भी हो सकती है, बट सेकेंडरी डेटा है तो आपकी इंफॉर्मेशन शायद रॉन्ग भी हो सकती है। क्योंकि सेकेंडरी डेटा मतलब अपने ने किसी और अदर पर्सन से मंगाया है कि ये इन्फॉर्मेशन लाके दो, उसने अपने को इन्फॉर्मेशन लाके दी तो क्या पता उसने शायद राइट दी है या रॉन्ग दी, अपने से बना के दी है या सच में उसने जाके ली है, तो मतलब वो रिलायबल हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। बट प्राइमरी डेटा हो तो वो एक्सेप्टेबल है, पर सेकेंडरी डेटा हो तो नॉन एक्सेप्टेबल और नॉन रिलायबल है। सेकेंड पॉइंट टू बी क्लियरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इनडिपेंडेंट वेरिएबल। Well, there is a cause-effect relationship between variable, then the cause variable is treated as an independent variable, as the effect variable is treated as a dependent variable, and its value are dependent on the value independent variable. For instance, if we are examining the relationship between rainfall and agriculture production in a region, the rainfall is independent variable and represent on x-axis, and agriculture production is dependent on variable, therefore represent on the y-axis. If we are examining production over different time periods, and time period represent on x-axis, production on y-axis. In economy, in the law of demand, however, price which is independent variable is represent on the y-axis, demand which is dependent variable is represent on x-axis. क्लियरिटी रिगार्डिंग डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जैसे आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, ग्राफ में आपको पता होगा ये लिखते हैं, हम पहले से ग्राफ बनाते आ रहे हैं तो ग्राफ में हम लिखते हैं वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल आता है। इसलिए जो है वो ध्यान देना होता है
कि आप लोग जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कौन कौन सी चीज़ ले रहे हो। अगर आप वाई एक्सिस पे आते डिपेंडेंट और आप वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट लिख दो तो वो रॉन्ग होगा। जैसे कोई भी सिटी में अलग अलग 5 सिटी लेते हैं हम लोग, लाइक सूरत है, अहमदाबाद है, वडोदरा है, मुंबई है, राजकोट है। तो 5 सिटी में कोई भी सिटी में एग्रीकल्चर कितना कितना हो रहा है उसे हम नंबर में बताना हो तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, 5 सिटी होगा। तो वो एक्स एक्सिस पे लिखेंगे ना, कितना कितना एग्रीकल्चर हुआ वो वाई एक्सिस पे लिखेंगे ना, तो ग्राफ में इजीली समझ आएगा। राइट स्टूडेंट, मतलब मेरा कहना ये है कि हम जो सिटी है वो जो अलग अलग सिटी है उसे हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे और उसका एग्रीकल्चर क्या है अलग अलग उसे हम वाई एक्सिस पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट टू बी सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट स्केल्स। In order to obtain a systematic graph with clarity and appropriate size, proper scale must be taken on the both the axes. Scales are measurable, taken to represent actual data in a diagram. If actual data is too large, say in 0000, then such data cannot be directly represented in chart. Hence, it is represented after converting into measure on an appropriate scale. For example, in a diagram, a distance of 1 centimeter, 10,000 units is equal to 1 centimeter is equal to 5 year, and so on. Such scale are taken on the both axes. Selecting appropriate scale मतलब पर्टिकुलर स्केल देते हैं कि आप लोग को पता होगा जब हम वाई एक्सिस पे नंबर लिखते हैं ना तब पर्टिकुलर गैप में लिखते हैं। जैसे 5 का गैप है, 10 का गैप है, 50 का गैप है, उसे पर्टिकुलर गैप में हम स्केल लिखते हैं, उसे स्केल कहते हैं। वो गैप है ना वो डायग्राम छोटा भी ना हो और बड़ा भी ना हो ताकि जो है वो क्लियर डायग्राम बन सके। इसलिए हम लोग ग्राफ बनाते वक्त वाई एक्सिस पे स्केल कितना लेना है वो देखते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स। एंड जो भी स्केल लिखते हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए जिससे वो डायग्राम इजीली समझ पड़े। इस तरह से डायग्राम बनाते वक्त इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कि फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है कि हमारा जो मतलब इन्फॉर्मेशन हम जो मिलती है हमें वो रिलायबल होनी चाहिए। फिर सेकंड में बताया गया कि वाई एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल लिखते हैं और एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल लिखते हैं। फिर लास्ट में हमें बताया गया है थर्ड पॉइंट में कि ग्राफ में कितना डिफरेंसेस लेना चाहिए और स्केल परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक विल बी प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन डायग्राम ग्राफ। न्यूमेरिकल डेटा कैन बी different type of graph and diagram showing linear and non-linear relation are commonly used in economy. The demand curve is one such a diagram. Some other type of chart, graph, diagram used frequently in economy: bar diagram, group bar diagram, pie diagram, etc. Bar diagram, a bar diagram also known as a bar chart or bar graph, is a diagram which represent group data with rectangular bar with the length of proportional to the value which they represent। जो ये डायग्राम बनाते हैं ना वो डायग्राम कितने टाइप में बनते हैं? 3 टाइप में बनते हैं, राइट? बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर्स। न्यूमेरिकल मतलब नंबर की इंफॉर्मेशन इन डायग्राम और ग्राफ। मतलब जैसे कि क्वांटिटेटिव मतलब न्यूमेरिकल डेटा और न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर की इंफॉर्मेशन ऑन डायग्राम और ग्राफ। डायग्राम और ग्राफ में नंबर की इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो कितने टाइप के ग्राफ और डायग्राम होते हैं? 3 टाइप के, बार डायग्राम, ग्रुप बार डायग्राम और पाई डायग्राम। बार डायग्राम मतलब आपको पता है ना, जब जो भी ग्राफ में अलग अलग तरह के बार्स बनाए जाते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करे उसे बार डायग्राम कहते हैं। जैसे कि बार डायग्राफ यहाँ बताया हुआ है एग्जाम्पल के थ्रू। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया तो 1970-71 एक्स एक्सिस पे लिखा है और 23.8 है तो 10, 20, 30 का गैप लेके यहाँ प्रोडक्शन बताया गया है। फिर सेकेंड है ग्रुप बार डायग्राम। ग्रुप क्लस्टर बार डायग्राम मतलब दिस चार्ट आर यूज व्हेन द dependent variable is grouped in more than one category. For example, when we want to examine the literate rate for different year in a Gujarat, we can use a group bar diagram to show male, female total illiteracy rate as 3 category in one group for 1 year. Bar for each category can be shaded color differently.
जब कोई दो इन्फॉर्मेशन साथ में दी गई हो ना, कितनी बार बार डायग्राम के साथ दो बार से साथ में बनाए जाते, दो बार साथ में बनाए जाते, दो बार साथ में बनाए जाते, उससे कहते हैं ग्रुप बार डायग्राम या तो क्लस्टर बार डायग्राम, जिसके अंदर दो ग्रुप जो भी है वो साथ में बनाए जाते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि लिटरेसी हमें चेक करना है, तो 1951 से 2011 तक का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया है कि लिटरेसी रेट इन परसेंट, गुजरात इन परसेंटेज, मतलब मेल और फीमेल की लिटरेसी, मतलब मेल कितने पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है और कितने टोटल लोग पढ़े लिखे हैं, उसका सोशल इकोनॉमी सर्वे किया है। कि एक साथ, मतलब वो हम अलग अलग भी कर सकते हैं सर्वे, बट इसमें एक साथ सर्वे करते और एक ग्राफ में बताया जाता है, उसे कहते हैं ग्रुप डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम। जैसे इसमें बताया गया है कि 1951 में मेल और फीमेल्स की लिटरेसी क्या थी वो सर्वे करने, तो एक साथ बताया गया कि मेल 30 थे, 20 फीमेल थी, तो एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उसे कहते हैं ग्रुप और क्लस्टर बार डायग्राम। नेक्स्ट विल बी पाई डायग्राम। अ पाई चार्ट इज अ सर्कुलर स्टैटिस्टिक graph which is divided into sector to illustrate the numerical proportion of data. The numerical data is proportionally converted into degree in a circle and sector are formed considering this degree. For example, the share of different sector in India national income can be shown in a pie chart. Thus, numerical information can be explained in a simple manner with the help of graph. मतलब पाई डायग्राम मतलब जिसके अंदर सर्कल के थ्रू इन्फॉर्मेशन हो ना, उसे डिग्री में कन्वर्ट करके इन्फॉर्मेशन जो है उसे डिवाइड कर दिया जाता है, उसे कहते हैं पाई डायग्राम। कोई भी ग्राफ के थ्रू इन्फॉर्मेशन बतानी हो तो इन 3 तरह के ग्राफ बहुत इजी और बहुत यूज़फुल रहते हैं। लाइक ये पाई डायग्राम में बताया गया है कि एग्जांपल दिया गया है कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस, तो उसे तीनों को साथ में कन्वर्ट करना है, तो उसे तीनों को डिवाइड करके सर्कल के अंदर बताया गया है कि डिवाइड करके एग्रीकल्चर 13.9, 26.2 इंडस्ट्री है तो उसे डिवाइड करके दिखाया गया, और 59.9 सर्विस है तो उसे डिवाइड करके दिखाया गया। इन 3 वे से हम बार डायग्राम और ग्राफ बना सकते हैं। कि बार ग्राफ में हम एक साथ बार ग्राफ में सारा इंफॉर्मेशन डाल के बता सकते हैं कि 1972-71 में कितना प्रोडक्शन था वो दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ग्रुप क्लस्टर बार डायग्राम मतलब एक साथ 2 चीज़ों को कंपेयर करके इन्फॉर्मेशन बताई गई हो, उससे बोलते हैं ग्रुप क्लस्टर डायग्राम। और पाई डायग्राम मतलब कोई भी चीज़ को डिवाइड करके इन्फॉर्मेशन दी गई हो, उसे कहते हैं पाई डायग्राम। डायग्राम में कैसे लिखते हैं, कौन सी चीज़ क्या ध्यान रखना चाहिए, उसे समझाया गया है। राइट बच्चों, समझ आया ना स्टूडेंट? थैंक यू।